ओके देन, चलिए तो हमने आपको लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में बताया था, और जो आपने लिस्ट भेजी है उसके हिसाब से मुझे लगता है मैंने सारे ही फंक्शन करा दिए हैं आपको। डू यू फाइंड एनी फंक्शन जो कि नहीं बताया गया है? नो मैम। नहीं ना? तो चलिए आज हम स्ट्रिंग के फंक्शंस कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के फंक्शंस की अपनी एक कैटेगरी है और बहुत सारे फंक्शंस हैं which help us to do different kinds of tasks on a value that is stored within a string. So let's start with a new class str1. तो देखिए इसमें सबसे पहला फंक्शन जो एक स्ट्रिंग के लिए फंक्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम initializing a string, declaring variable s and initializing a string nitec, nitec computer education. तो सबसे पहले एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने अपने स्ट्रिंग को यहाँ पर स्टोर कर दिया है और डबल कोट्स में से एनक्लोज करना है, एंड दिस इज द बेसिक और वी कैन से मेजर difference between a string and a character. That character always has to be stored within has to be enclosed within single quotes, whereas a string always has to be enclosed within double quotes. Okay, then ये हो गया आपका। अब इसके बाद में यहाँ पर हम सबसे पहला फंक्शन जो करने जा रहे हैं, that is a function which will help us to return the length of the given string. Length of the given string means it will count total number of characters that the string includes, including the spaces within the string. ठीक है, within these double quotes. Suppose first of all I need to write system.out.print. I just want to print length of the given string. So length of the string is, अभी क्या है यहाँ पर, I need to use this function. तो string को use करने के लिए हमारे पास जो function है, that is सबसे पहले तो I need to write this variable. In my example, the variable has name s. Then I need to use this operator, dot operator हमने use किया, and now function length, and I need to use these brackets and then this, and then I'll close this class. तो ये हमने यहाँ पे किया है. Now s dot length, s is the name of variable in which I have stored the string. If you are using this program and if you have declared your string variable as str or whatever the name of the variable, that name of the variable should be given here. So length is a function that will return the length of that has been length of that string which is stored in this s variable. Now I'm compiling this program, I'm closing, and then I'll run this one. तो अभी क्या है, उसने टोटल आपको लेंथ कितनी रिटर्न किया है, उसने रिटर्न किया 25, बिकॉज देर आर टोटल 23 कैरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग, बट it has returned 25 because it is also including these two spaces 1 and 2, because space is also a kind of character. Suppose I increase some more spaces, like I increase 2 spaces here and 2 spaces after the string, but within these double quotes. And now once again I'm compiling my program, and now the string is 20, length is 29, because originally it was 25 and 2 spaces are added before this string and 2 spaces are added after the string, but because I have given those spaces within double quotes, that's why it also has included those spaces. So this is how this length function works. Clear है आपको? अभी अगर आपसे भी पूछा जाए कि यहाँ पर इसकी लेंथ क्या होगी, तो आपको काउंट करके ही बताना होगा कि ये इसकी लेंथ क्या है. तो इस तरह से स्ट्रिंग की लेंथ को हम यूज करते हैं. और आप देखेंगे कि जब भी आप स्ट्रिंग पे कोई भी काम कर रहे हैं, माने कुछ भी अगर आपसे कह दिया जाए, सपोज आपको बोल दिया जाए कि एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर और इनिशियलाइज एनी स्ट्रिंग एंड प्रिंट द कैरेक्टर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग इन डिफरेंट लाइन्स. सपोज आपने लिख दिया आयुष, और आयुष में यू वांट टू प्रिंट ए and then y in another line, u in the next line, s in other line, and h in the last line. So one by one you need to print the characters of all that of the string, but you want to print them in different lines.
So what do you need to do? कैसे करेंगे? अगर आयुष है एक स्ट्रिंग और उसमें AYUSH को हम अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं, क्या करना होगा उसके लिए? Ma'am, can we do a println? No. How can you use println? Because println is a function that will print anything given in this function in different lines. But आपको क्या है अब, तो मतलब हमेशा फिर ये अगर आयुष अगर आप लिख रहे हो तो दैट मीन्स कि फिर println में आप एक बार A लिखोगे, देन नेक्स्ट लाइन में फिर वो फंक्शन यूज करोगे, Y लिखोगे, है ना? You mean to say this one? तो ऐसे अगर आप प्रिंट करोगे कि SOPLN A देन SOPLN Y, तब तो फिर वो अगर मान लीजिए स्ट्रिंग आयुष था तब तो आपने उसे 5 लाइंस में लिखा, फिर अगर मान लीजिए हमने लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन तो दैट मींस आई नीड टू राइट 25 लाइंस. तो ऐसे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. तो हमें क्या करना है एक्चुअली, अगर इस तरह का काम करना होता है तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे उस स्ट्रिंग में कितने हैं. और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको किससे पता चल सकते हैं? लेंथ फंक्शन से पता चल सकते हैं. और अगर आप एक, क्योंकि यू वांट टू रिपीट दिस प्रोसेस, यू वांट टू प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग बट इन डिफरेंट लाइंस, दैट मींस यू वांट टू रिपीट दैट स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, एंड you want to print a particular character of the string one by one. तो repetition करना है, that means you need to work with a loop. कोई भी एक loop तो use करना ही होगा क्योंकि repetition always is used with a loop statement. तो एक loop भी चाहिए होगा, लेकिन उस loop में भी आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कोई जिस जगह पर हम हैं, जिस पोजीशन पर हम हैं अपने string में, उस पर कौन सा कैरेक्टर है वो अगर आपको पता होगा तभी आप 1 by 1 कैरेक्टर्स प्रिंट करा सकते हैं, चाहे फिर वो एग्जाम्पल में आयुष लिखा हो या नाइटेक लिखा हो या कुछ भी लिखा हो. तो अगर किसी गिवन इंडेक्स वैल्यू का कैरेक्टर आपको पता करना है तो देन वी हैव अनदर फंक्शन. लेंथ से तो आप लेंथ रिटर्न कर रहे हो, बट सपोज मुझे चाहिए कि मुझे ये पता करना है कि इस नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन में जो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा n, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है. आई वॉन्ट टू know about the index value of a given character from a given string. So क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, तो मैं सीधे लिख रही हूँ विदाउट एनी मैसेज. तो हमारा जो है उसके हम लिखेंगे स्ट्रिंग का नाम और फंक्शन टू एक्सेप्ट और टू प्रिंट द गिवन कैरेक्टर एट अ गिवन इंडेक्स वैल्यू. तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है कैर एट. कैर एट में आप C कैपिटल रखते हो, S डॉट कैर एट इस तरह से लिखोगे एंड ब्रैकेट में आप इंडेक्स वैल्यू डालेंगे. अब देखिए, whenever it is example of a string, whenever you are working with a string, you always have to make it sure, you always have to make it a point, you always have to remember this, that the length of the string, वो चाहे जो भी हो, be it 8 characters 10 characters, but the first index value of a given string always is 0. String always starts with 0. हमेशा ध्यान रखिएगा. So if I want to get the index value of this character, तो मुझे क्या इसके लिए कैरेट नहीं, मैं इसके लिए यूज करूंगी यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फंक्शन टू रिटर्न इंडेक्स वैल्यू ऑफ अ गिवन कैरेक्टर. तो अभी कौन सा कैरेक्टर चाहिए हमको? यहाँ पर हमने दे दिया n, और n क्या है हमारा? n एक कैरेक्टर है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर्स में इंक्लूड कर दिया है. ये देखिए सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट्स में लिखा है s डॉट इंडेक्स ऑफ. इंडेक्स ऑफ में o कैपिटल रहेगा. अभी हम इसको यहाँ पे कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, और अब हम यहाँ से रन करा रहे हैं. तो देखिए उसने क्या रिटर्न कर दिया. उसने रिटर्न किया, क्या चक्कर है? अच्छा, लेंथ भी वो लाइन डिसेबल कर देते हैं. ये लाइन जो है हम इसे डिसेबल कर रहे हैं, आपस से कंपाइल करें. तो उसने क्या दिया? 0. क्यों 0 दिया? क्योंकि हमारा जो हमने n दिया था वो हमारे स्ट्रिंग का ये फर्स्ट कैरेक्टर था, ये वाला. सो यू सॉ दैट दिस इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस गिवन कैरेक्टर इज 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे स्ट्रिंग में n कहां पर अपियर हुआ? 0th इंडेक्स पोजीशन पर ये अपियर हुआ है. ठीक है. अभी अगर आपको देखना है कि इसकी जो है लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है, कि मतलब अगर ये रिपीट हुआ है तो लास्ट टाइम ये कहां पर रिपीट हुआ है, तब आप यूज करते हैं फंक्शन लास्ट इंडेक्स ऑफ. तब ये इस तरह से लिखा जाता है
इंडेक्स का आई कैपिटल रखते हैं, ऑफ का ओ कैपिटल रखते हैं, लास्ट का एल स्मॉल रहता है। और अब हम क्लोज कर रहे हैं कंपाइल करके, तो यहाँ पे क्या करेगा, इट विल फाइंड द अकरेंस ऑफ एन लास्टली, जहां भी हमारे स्ट्रिंग में ये अकर कर रहा है। क्लोज करेंगे और यहाँ पर इस तरह से ये आपको बताएगा 24 मतलब 24th पोजीशन पर ये है। अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या 24 सही दे रहा है। तो यहीं से देखिए काउंट करना शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 देन स्पेस 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24. So if you want to get the index value of any character, so you can use this index of function. But if the character is existing more than one times in your string, then you can find the last index of function, use this function and you can find the last occurrence of that given character also. So this is the function that will help you to get the index value of given character. But if you want to get the character at a given index value, that is almost just opposite. In this function, you are getting the index value of given character. And now if I want a given, if I want to give a index value and I want to take out the character that at given index value, which character is given, then I have to use function. One second. Then I need to use function s dot char at. Char at का मतलब ही है character at which position. तो suppose मैंने बोल दिया यहाँ पे कि suppose I have given 4 here, तो नंबर देना है हमें इसमें, तो इंडेक्स वैल्यू जो है वो एक नंबर ही होता है। तो 4 दिया, तो अब ये क्या करेगा, काउंट करेगा 0 1 2 3 4। तो क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, C रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, हम इसे यहाँ पे कंपाइल करते हैं और क्लोज करते हैं। और 4 दिया है तो देखिए उसने क्या दे दिया, कैपिटल C। ये C रिटर्न कर दिया उसने, क्योंकि C हमारा 4th पोजीशन पे था, तो 0 से ही हमारी काउंटिंग भी शुरू होगी। तो अगर आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आपसे कहा जाए कि इसका आउटपुट बताइए, जैसे 14 यहाँ पर दिया हुआ है और आपको स्ट्रिंग में यही लिख के दे दिया गया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, एंड इफ यू आर आस्क्ड कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको काउंट करके बाकायदा बताना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए R। एंड लेट्स चेक whether we are right or wrong। और उसने बता दिया R। तो ये जो फंक्शन है स्ट्रिंग के, इनमें आपको जो है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे देखने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। So we can say that index of and caret functions are almost opposite. Index of function returns the character which is present, returns the index value of the character that is given within the function, whereas char at function returns the character at given index value. So अब अगर हम वापस going to our that question कि if I want to print any string in the characters of the string in different line, तो क्या करना होगा, then first of all तो I should know that what is the length of my string, because only then I can decide that from which index value I have to start and where I have to end. Starting तो चलो sure है, हर string की 0 ही होगी, लेकिन हमें end कहाँ करना है, क्योंकि अगर आयुष है तो इसका मतलब कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ हमारी कम होगी, लेकिन अगर स्ट्रिंग है नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन तो उसकी लेंथ डिफर करेगी। Every string is different and the length vary from string to string. So first of all I have to confirm that how many total number of characters are there in my string, and this I can get with the function, this length function. And then I want to extract character at that given index value, and then only I can print that character one by one and I can print them in different lines. So अभी क्या है, suppose my string is नाइटेक, अभी इतना ही देते हैं यहाँ पे नाइटेक। और अब मुझे चाहिए सबसे पहले, मुझे क्योंकि लूप यूज करना तो पहले तो कुछ वेरिएबल्स ही, एक तो सॉरी हमने ले लिया यहाँ पे इंटीजर, लेंथ निकालने के लिए हमने len एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर में। देन हमें क्या चाहिए, अभी मुझे कैरेक्टर एट गिवन इंडेक्स वैल्यू चाहिए, चलो तो वो मैं बाद में लेती हूँ। अब हम इसको यहाँ पे एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल हमको चाहिए होगा, तो वो कॉमा से हमने एक लूप के लिए ले लिया सपोज i। और अब हम यहाँ पर आए, ये सब हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं
अब हम लूप चलाएंगे I का, it will start with 0, that is the first index value of my string, and I has to run up to L, that is length minus 1, क्योंकि अगर किसी string की length 5 है तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू उस स्ट्रिंग की क्या होगी, लेंथ माइनस 1, दैट इज 4. हमेशा ध्यान रखिए, दिस इज अ रूल दैट फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ एनी गिवन स्ट्रिंग इज 0, लास्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ एनी गिवन स्ट्रिंग इज लेंथ माइनस 1. So इसीलिए यहाँ पर I have not written less than equals to, I only have written less than len, len, and then every time I want to increase one by one, that means that I want to the value of I to increase one by one, that first of all come to this character and then come to the next character and so on. Repeat the process until unless we finish up with the string. Now coming to the loop, entering within the loop. Now I want to extract the character of my given string. For that I need another variable of char data type, and then whatever the name, see suppose I have written ch or s dot char at given index value, and index value is represented here in my example with I, because I is that index value that will start from 0 and will increase one by one. So by using this line, I want to say that first of all, get the character given at this index value and store it in variable ch. And now simply I have to print the variable system.out.println, because now I want to print the characters in different line and the characters are stored in ch. Now I'll compile my program. I'll close my loop first of all. Then I'll compile it and then okay, length I have to take the length. Len is equal to s dot length. So in this line I will get the total length of the given character and then I will run the loop. Now I'll close the program and see all the characters are stored are printed in different line. अभी in case of this यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको. अब I am changing the string Nitec computer, sorry, application, compile again, close and run. ये देखिए, तो अभी क्या है, आपको मैनुअली कुछ करना ही नहीं है. कितना आसान हो गया आपके लिए सब कुछ. अब तो सिर्फ आपको स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज करनी है और देखिए आपका काम कितना आसान हो गया. बस दो फंक्शंस का आपने यूज किया. सबसे पहले तो आपने लेंथ निकाल ली कि आपके स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, फिर आपने एक लूप उस स्ट्रिंग की लेंथ के लिए चलाया जिसमें आपने क्या किया कि 0th इंडेक्स वैल्यू से शुरू किया. देखिए, और लास्ट इंडेक्स वैल्यू कैसे पता करी, क्योंकि लेंथ आपके पास थी तो आपने लेंथ माइनस 1 तक का लूप चलाया. अंदर आए, सबसे पहले जब लूप चला तो आई की वैल्यू 0 थी तो हम यहाँ पर पहुंचे, पोजीशन हमारी ये थी. एंड देन this function extracted the character at that given index value, that was a, and that a was stored within ch, and as soon as I printed a value of ch, a was printed. And then again come to next step of the loop. Again the other character, second character of my string, that was stored in ch, and that's how it printed all the characters of given string in different lines. छोटा सा अगर आप एक चीज यहाँ पर चेंज करना चाहते थे, जैसे कि नया कैरेक्टर अगर नहीं भी लिखना चाहते थे फिलहाल यहाँ पर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते थे, मतलब ये कैर ch नहीं भी देना चाहते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे. सिंपल एग्जांपल है इसलिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज कैरेक्टर को आपको स्टोर करना ही पड़ता है. तो हम ऐसे लिख सकते थे s.char@i, ये चीज यहाँ लिख सकते थे ऐसे. कंपाइल कर रहे हैं, वापस से क्लोज कर रहे हैं और ये आउटपुट देख रहे हैं. तो ये चीज जो है आपको यहाँ पर, ये फंक्शन जो है लेंथ फंक्शन, हमेशा आपको स्ट्रिंग में जब भी होगा लेंथ तो निकालनी ही निकालनी रहेगी. क्यों? क्योंकि जब तक आप लेंथ नहीं निकालोगे आपको ये कंफर्म ही नहीं होगा कि हमारा स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक का है, कितने कैरेक्टर्स का है. और लेंथ को निकालने के बाद अगर आपको कैरेक्टर्स पे कोई काम करना है तो फिर एक कैरेक्टर वेरिएबल में
वो कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके रखने होंगे, एंड फॉर दैट यू नीड टू वर्क विद दिस कैरेट फंक्शन। तो ये आपको यहाँ पर बता रहा है। अभी अगर हम यहीं पर ये चाहते थे कि आयुष सिंह के इंडेक्स वैल्यूज प्रिंट हो जाते हैं, यानी ए की पोजीशन क्या है, इंडेक्स वैल्यू क्या है, वाई की क्या है, तो आप यहाँ पर एस डॉट कैरेट की जगह में क्या लिख दोगे यहाँ पे, तब आप लिखोगे इंडेक्स ऑफ। और इंडेक्स ऑफ किसका निकालना है आपको, हमें निकालना है कैरेक्टर का, क्योंकि इंडेक्स ऑफ में तो आप कैरेक्टर देते हो। तो कैरेक्टर कैसे, एस डॉट कैर एट आई, ये। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, कैरेक्टर निकालेगा ए, उसका इंडेक्स वैल्यू इससे पता चलेगा और प्रिंट हो जाएगा। कंपाइल कर रहे हैं प्रोग्राम, क्लोज कर रहे हैं और रन कर रहे हैं। तो देखिए ये बता रहा है आपको 0 1 2 3 4 5 3 7 8 9 4, ये क्या दिखा रहे हैं। ch is equal to s dot char at I, और यहाँ पर क्या रहते हैं, थ्री 7 8 9 4 क्यों दे रही है। ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग भी देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 6, अच्छा 4 वो स्पेस को ले रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 दिखा, ये 4 वो स्पेस ले रहा है यहाँ पे, फिर 8 9 10 11, और फिर वो यहाँ पर जो है 12 13 14, ये 1 इधर जा रहा है क्या। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो है अभी स्पेस को नहीं लेते हैं। तो अगर केवल हम एक स्ट्रिंग पूरा का पूरा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे वर्ड लिख दिया एजुकेशन, मैंने बिना स्पेस का कोई वर्ड लिखा, तो वो आपको पूरी तरह से इस चीज को रिटर्न करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जो है 0 है, ये फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर किया गया है, 0 को यहाँ फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू मानते हैं, और ये हमारा 8 जो है ये लास्ट इंडेक्स वैल्यू है। और एजुकेशन की लेंथ जो हो रही होगी वो रही होगी 9। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये कैरेट फंक्शन, लेंथ फंक्शन और इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए, नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए फंक्शन है। स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग्स को अगर आपको ज्वाइन करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग है हमारे पास एस, जिसमें हमने लिखा हुआ है आयुष, और अब एक और स्ट्रिंग हम यहाँ पर ले रहे हैं कॉमा S1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया सिंह। ये दो स्ट्रिंग्स हैं और इन दोनों को आपस में हम ज्वाइन करना चाहते हैं और ज्वाइन करके लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं फंक्शन। जैसे यहाँ हमने लिख दिया, मान लीजिए फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में हमने प्रिंट करा दिया पहले अपना स्ट्रिंग एस, फिर हमने नेक्स्ट लाइन में दे दिया
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लास्ट नेम प्रिंट करा दिया S1 और अब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं नेक्स्ट लाइन में फुल नेम। तो फुल नेम में हमें दोनों जो स्ट्रिंग्स उन्हें ज्वाइन करना है, तो दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए S डॉट कॉन्कैटिनेट S1, तो ये क्या करेगा यहाँ पर कि इस स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा इस स्ट्रिंग के साथ, और हम यहाँ पर कंपाइल करेंगे कॉन्कैट फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे किया और ये उसने पूरा नाम यहाँ पर आपको दे दिया। हालांकि कॉन्कैट फंक्शन में ये ध्यान रखिएगा कि स्पेसेस नहीं आती है, मतलब अगर आप दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो बीच में स्पेस नहीं आएगी। एक चीज तो आप ये ध्यान रखिए, अपने आप कोई स्पेस नहीं आ सकती, वो दोनों स्ट्रिंग्स को जैसे हैं वो एज इट इज ज्वाइन करेगा। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास सिर्फ ये है कि या तो आप जब यहाँ पे आयुष लिखा था आपने तो ही आप स्पेस दे देते, तो एक सॉल्यूशन यही आप इसको ये यूज कर सकते हैं, मतलब मैनुअल एफर्ट यूज करेंगे, क्योंकि अपनी तरफ से हमारा फंक्शन नहीं देता। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपने सोचा कि हम यहाँ पर एक मिडिल नेम के लिए भी एक स्ट्रिंग ले लें और एक लास्ट नेम के लिए भी एक स्ट्रिंग ले लें S1 S2 और उन तीनों को ज्वाइन कर लें, तो कॉन्कैट फंक्शन हमेशा दो स्ट्रिंग्स पे ही काम करता है, लाइक इट कैन नॉट एक्सेप्ट मोर देन 2 स्ट्रिंग्स। तो आपको ये दो ही स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके देगा, तो ये कॉन्कैट फंक्शन है जिससे कि आप दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं। कॉन्कैट फंक्शन के बाद में नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है, इसको हम डिलीट कर दें। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिखा है हमने और हम उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी मतलब रिवर्स केस में। जैसे हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है ये, और हम इसको कैपिटल लेटर्स में हम पूरा लिख रहे हैं आयुष, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये स्ट्रिंग है ये रिवर्स केस में प्रिंट हो, तो रिवर्स केस में प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट रिवर्स इन द सेंस कि मतलब लोअर केस में प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ लिख दें ओरिजिनल स्ट्रिंग, पहले हमने लिख दिया कि जो हमें स्ट्रिंग मिला था वो एक्चुअली कैसा था, वो तो जैसा है वही प्लस S, और अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग इन लोअर केस। तो लोअर केस के लिए आपको जो यहाँ पे फंक्शन मिलता है दैट इज S डॉट टू लोअर का LW लोअर केस, और यहाँ पर करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टू लोअर केस फंक्शन में ध्यान रखना आपको सिर्फ लिखने के स्टाइल में टू का T कैपिटल रहेगा, लोअर का L टू का T स्मॉल रहेगा, लोअर का L कैपिटल होगा और केस का C कैपिटल होगा। ये आपको ध्यान रखना। अगर आप उसमें सपोज C को स्मॉल कर देते हैं, कहीं भी कुछ अपनी मर्जी से करते हैं और अब आप कंपाइल करेंगे तो इट विल जनरेट एन एरर। तो दिस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग दिस फंक्शन, टू लोअर केस, और यहाँ पर S जो स्ट्रिंग हमने दिया है उसको वो कन्वर्ट करेगा लोअर केस में। वापस से कंपाइल कर रहे हैं, रन करा रहे हैं एंड सी ओरिजिनल स्ट्रिंग था ये, और व्हेन इट इज कन्वर्ट टू लोअर केस दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो अगर आपको स्ट्रिंग को लोअर केस में प्रिंट करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई केस स्ट्रिंग लिया है लोअर केस में, जैसे यहाँ पर यही चीज लोअर केस में लिखी होती, एंड इफ यू वांट टू प्रिंट इट इन अपर केस तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टू अपर केस, कंपाइल क्लोज। तो ये आपका दो किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर एक स्ट्रिंग दे दिया गया है उसको अपर में कन्वर्ट करें तो बस टू अपर केस कर देंगे, अगर कहा जाए कि लोअर में कन्वर्ट करें तो आप क्या देंगे, टू
लोअर केस। हालांकि अभी भी आपके पास ये फंक्शन नहीं है स्ट्रिंग में, मतलब है, अभी तक आपको नहीं पता है ये फंक्शन कि जिससे हम ये चेक कर सकें कि गिवन स्ट्रिंग का केस क्या है, वो अपर केस में है या लोअर केस में, ये हम कैसे चेक करें। तो इसको चेक करने के लिए भी फंक्शन है, हम आपको नेक्स्ट सेशन में वो भी बताएंगे। फिलहाल अभी हम इतनी चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि आप अगर कन्वर्ट करना चाहें तो अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, ये तो चीज हो गई। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि एक स्ट्रिंग आप लीजिए और उस स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं आयुष, तो अगर हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं तो उस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं उसमें हम आस्काई वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी कैरेक्टर्स हम कीबोर्ड से फीड करते हैं, यानी जो कीबोर्ड जो डेटा हम फीड करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, हर कैरेक्टर का एक आस्काई वैल्यू होता है, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होते क्या है, ये सिर्फ नंबर्स होते हैं। किसी भी कैरेक्टर के लिए एक नंबर दिया गया है, फिर वो कैरेक्टर चाहे स्पेस ही क्यों ना हो, टैब की ही क्यों ना हो, एंटर की ही क्यों ना हो, मतलब प्रिंटेबल कैरेक्टर्स और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर के लिए एक आस्काई कोड होता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम उस कैरेक्टर को आस्काई के थ्रू ही आइडेंटिफाई करता है। तो अभी आस्काई कोड क्या है किसी कैरेक्टर का अगर पता करना हो तो हम उसे कैसे पता कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल में दे रही हूँ कि सपोज if you are having any string and you want to print ASCII codes of each and every character of that given string, how will you do that? So again, coming to this program, and suppose I have written this string here and I now simply want to print ASCII code of each and every character of my given string. That means I have to visit all the characters one by one. For that, first of all, I must know what is the length of the string, and for this I need to run a loop again. So I have declared these variables here. Now first of all, I'll get the length, s dot length. This function will help me to get the length of the function, length of the string. Now I'll run the loop, I equals to 0, I is less than length and I plus plus. अभी ये तो हो गया। अब कैरेक्टर तो हमें पता चल जाता है, s डॉट कैरेट फंक्शन है हमारे पास, तो कैरेक्टर तो प्रिंट कराने थे तो उन्हें प्रिंट ही कर लिए थे। ये देखिए, जैसे हम यहीं पर ये स्टेटमेंट ले रहे हैं, अब यहाँ पर ऐसे लिख तो दिया, ASCII कोड ऑफ s डॉट कैर एट इस, तो ये इतना तो ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे इससे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैरेक्टर मिल जाएगा, जैसे ASCII कोड ऑफ A इज, ASCII कोड ऑफ Y इज। लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि इसका वो क्या है, कैरेक्टर ASCII वैल्यू क्या है। तो आपको ये पता है कि कैरेक्टर तो आप कैरेट फंक्शन से निकालते हैं, लेकिन अगर आप उस कैरेक्टर को कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके इंटीजर कोड में, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं इसको वापस यहाँ पे लिख दे रही हूँ, s डॉट कैर एट आई। इस फंक्शन से इतने से क्या होगा, इतने से मुझे कैरेक्टर मिलेगा, और इसी कैरेक्टर का मैं क्या निकालना चाहती हूँ, उसी का इंटीजर वैल्यू निकालना चाहती हूँ। तो जस्ट बिफोर दिस आई विल यूज दिस int कीवर्ड हियर। तो सबसे पहले क्या करेगा, it will get the character of that given index value and then it will convert it into its own integer code, that will be the ASCII value of given character। अभी मैं इसको यहाँ पर कंपाइल कर रही हूँ, एक यहाँ पे ब्रैकेट ये एक्स्ट्रा है, इसको हम क्लोज कर लें, यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज करें, ठीक है। अभी कंपाइल करते हैं, क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रोग्राम को हम अपने रन कराते हैं, और देखिए ये आ गया, ASCII code of A is 97, Y is this, U is this, S is this, H is this। और अब देखिए इसी को कंपाइल कर क्लोज कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर अब स्ट्रिंग चेंज कर रही हूँ, मतलब अभी तो केवल क्या लिखा था, आयुष, अभी हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सिंह भी लिख दे रहे हैं। दैट मीन्स कि हमने बीच में एक स्पेस भी डाल दिया, और आप देखिएगा कि वो स्पेस को भी लेगा। तो स्पेस का जो ASCII वैल्यू था दैट इज 32। ये देखिए, आयुष सिंह, और बीच में स्पेस है और स्पेस का ASCII वैल्यू भी उसने लिया है। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट स्पेस इज आल्सो ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कहीं भी है, स्पेस इज आल्सो अ कैरेक्टर। So if you want to know the ASCII value of any given character or any character, you simply have to first of all take that character, and then if you want
then you can simply write int keyword within brackets just before the character and you can get the ASCII code of that particular character in Java. In Java it's like this, आप दूसरे उसमें दूसरी तरह से यूज करते हैं. तो ये आपने जो है यहाँ पे ये काम किया. अब ये देखिए, आप अगर याद हो तो आयुष में ए जो लिखा था हमारा तो उसका 97 था. अब मैं इसे कैपिटल लेटर्स में चेंज कर रही हूँ, आयुष सिंह. और आप देखेंगे कि कैपिटल ए का डिफरेंट है. स्मॉल ए का 97 था लेकिन कैपिटल ए का आप देखिए 65 है. सो नाउ it is also proved that I told you in earlier sessions, like when we were starting with this programming language, I told you that every character has its own ASCII code and small a is typically different from capital A. They vary because they have their own different ASCII codes. So see how now it is proved that small a का ASCII code क्या था 97 and A has its ASCII value 65. तो इस तरीके से ASCII कोड्स पे भी आप काम कर सकते हैं और उनकी चीजों को निकाल सकते हैं. इतना हमने आज किया है. अगले सेशन में आई होप कि स्ट्रिंग के भी सारे फंक्शंस हमारे हो जाएंगे. जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं आप अपने स्ट्रिंग वाले चैप्टर में देख लीजिएगा. स्ट्रिंग हैंडलिंग शायद आपका चैप्टर है वो, या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कुछ ऐसा लिखा होगा, स्ट्रिंग हैंडलिंग इन जावा या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन. तो उसमें आपको ये फंक्शंस दिए गए हैं. और भी बहुत से फंक्शंस हैं, अभी यही नहीं है. एक फंक्शन हम आज लास्ट और कर लेते हैं और बस फिर आगे के फंक्शंस हम कल अगली की क्लास में करेंगे. जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक हमने सेंटेंस लिख दिया, रेड बुक इज ऑन द रेड टेबल. सपोज ये स्ट्रिंग है एंड नाउ आई वांट टू चेंज दिस वर्ड रेड and I want to write blue in place of red. मुझे red की जगह में blue लिखना है. तो मैं क्या करूंगी, system dot out dot print और यहाँ पे क्या कह देंगे हम s dot replace. replace में दो आर्ग्यूमेंट जाती हैं. पहले what I want to replace, I want to replace red and with whom I want to replace red with. So I want to replace red with blue. कंपाइल करूंगी, क्लोज करूंगी. कोई लूप नहीं चलाना, कुछ नहीं. जहां जहां रेड लिखेगा ये ऑटोमेटिकली सर्च करेगा और अपने आप ही उसको कन्वर्ट कर देगा. देखिए ब्लू बुक इज ऑन द ब्लू टेबल. इस तरह से आप रिप्लेस फंक्शन यहाँ पर यूज करते हो. आप चाहो तो इस चीज में ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसको ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ पर दे सकते थे. हम string dot out dot println original string. ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था, s डॉट, अच्छा सॉरी, ओरिजिनल स्ट्रिंग ही प्रिंट कराना है तो वो तो s है ही है. हम इसे कंपाइल कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं और अब हम यहाँ देखेंगे तो ओरिजिनल स्ट्रिंग था रेड बुक इज ऑन द रेड टेबल एंड नाउ आफ्टर कन्वर्टिंग दिस रेड टू ब्लू दिस स्ट्रिंग हैज बिकम ब्लू बुक इज ऑन द ब्लू टेबल. तो आयुष इतना आप पढ़ लीजिएगा. गो थ्रू योर चैप्टर. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो एंड देन विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट सेशन. दैट्स ऑल फॉर द डे.